جی الطاف بھائی آپ نے کچھ کہنا ہوتا آپ کو دعوت کلام. جی السلام علیکم. اللہ اصل میں واسع بھائی نے بہت پیارے انداز سے جو قرآن سے جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتا ہے، اور اپنے انبیاء کو، چونکہ انبیاء وحی کے جو ہیں وہ حامل ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں. اسی طرح جو کفار مکہ ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو جو ہے وہ خدا کا کلام نہیں مانتے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے. حضرت ابو طالب سے میں نے ان کی تاریخی کتابوں میں پڑھا ہے، کہیں گے تو میں حوالہ بھی نکال دوں گا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ابو طالب کو جا کے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد کی گالیاں دیتا ہے. یہ الفاظ تو وہاں پہ بھی موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ضیاء صاحب نے ابھی تک وہ جو بات کی تھی، انہوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ کون سا لفظ جو تھا وہ گالی تھا. یہ نہیں انہوں نے ڈیفائن کیا تھا واؤ واؤ گالی تھا یا کہ کتا گالی تھا، یہ نہیں انہوں نے ڈیفائن کیا تھا. اگر ڈیفائن کر دیتے تو پھر مختلف حدیث سے پھر الفاظ نکالے جا سکتے تھے، تو پھر یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدھی جائے گی. میں تو شروع سے ہی یہی کہتا ہوں ایک کہ چھوٹا مرزا سا صاحب جو سوال ہے ہیں ضمنی مرزا صاحب الطاف بھائی، چھوٹا سا ان کا ضمنی بہانہ سوال ہے، یہ ہے. اصل جو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نشانہ ہے. یہ پرابلم ہے، الطاف بھائی یہ کسی میں اس کو کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ مجھے بھی موقع لیکن دیجیے گا. رسول جی پاک یوسف صلی بھائی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. سیکنڈ میں صرف ایک آخری بات کر لوں ضروری الطاف بھائی سے. پہلے مجھے بولیں دیجیے. جی الطاف بھائی میرا ایک ضمنی میں سوال صرف یہ ہے ایک کسی کو یہ ایک کہنا حدیث پیش کہ کر کے میں گزر جاؤں گا. جی الطاف بھائی میں نے صرف یہ عرض کرنی ہے، پوچھنا ہے آپ سے یہ کہ آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں، مجھے ذرا یہ بتائیے گا، کسی کو یہ کہنا کہ فلاں کا فلاں عمل ایسا ہے، فلاں مثال کے طور پہ او کر کے بات کرتا ہے، یا کسی کو کہنا کہ وہ کتا ہے، تو گالی کیا ہے؟ کسی کو کچھ کہہ دینا گالی ہے، یا کسی کی کسی عمل کو کسی کے عمل سے تشبیہ دینا گالی ہے؟ یہ ذرا نہیں گالی جی زکریا دیکھیں صاحب، سخت زکریا صاحب ایک منٹ ہے، سبحان صاحب صرف ایک میری منٹ بات کیونکہ میں نے نہیں جانا ہے. خیر یہ بات غلط ہے. سبحان پھر صاحب میں آپ نے سارے جانا بول ہے چونکہ، تو میں اس بات کا رسپونڈ کر دوں پھر آپ کر لیجئے گا بات. ایک منٹ آخری میں ایک حدیث یوسی پیش بھائی آپ کروں کی گا. دیکھیں آواز جی، ڈبل ہو رہی ہے، معذرت چلیں چاہتا کر ہوں، لیں، آپ کا آپ کر مائک لیں میوٹ کر رہا ہوں. بعد میں کر لیں. میں حدیث جی پیش میں کروں نے گا اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر یہ کہیں گے تو میں ابھی لگا دوں گا، بلکہ نماز پڑھ یوسی کے بھائی براڈ پھر چھوڑ میں کے لگا بے دوں شک گا. آ جائیں، آپ کی آواز رسول ڈبل پاک آ صلی رہی ہے اللہ علیہ آپ وسلم کے نے فرمایا مائک کہ سے. آخری زمانے میں جی اب بہتر ہے. نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، یوسی صاحب سے کہہ رہا تھا، ہاں وہ جی، دوبارہ بھی آ رہے ہیں. میں تو آخری زمانے میں حرامیوں کی کثرت ہوگی کہ جو وہ محفل میں داخل ہوں گے تو وہ سلام کی بجائے گالیاں دیں گے. اب مجھے اللہ نہیں پتا کہ اکبر، یہ ان کے اللہ نزدیک اکبر. حرامی جو ہے کہنا. اچھا، یہ جو ہاں جی، لوگ یہ براڈ بخاری میں شریف کی حدیث آتے ہے. ساتھ کوئی بات نہیں کرتے اور گالی نکالتے ہیں، نعوذ باللہ یار، او مائی گاڈ. اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ کس طرح نہ پوری ہوتی. اللہ کے رسول کی، میرے پیارے نبی کی بات ہے، وہ کس طرح پوری نہ اس ہوتی. کا حوالہ دے دیں جی، اس کا حوالہ دے دیں حوالہ. جی الطاف بھائی اس کا حوالہ طلب کر رہے ہیں. حوالہ دیں اس کا، نماز پڑھ گیا. ایدا حوالہ دیو حوالہ. جی وہ گئے ہیں جی حوالہ لینے، میں ان کو بڑی اسکرین پہ کر دوں گا، پھر وہ انشاءاللہ پیش کر دیں گے یہاں پر. اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے آج، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہوئے 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 ہوئے، آج کے بعد پھر تو مطلب اف مائی گاڈ. اچھا جی، اچھا میری آواز ڈبل میرا تو نہیں آ رہی؟ نشان پھر دیکھا ہے سب لوگوں نے، میرا نشان سب لوگوں نے دیکھا ہے جی. پھر میں نے دوران ڈیبیٹ جب زکریا صاحب نے مجھے روکا کہ بات یہاں پھنسی ہوئی ہے، آگے چلیں، میں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اگر میں یہاں سے آگے جاتا ہوں تو بعد میں آپ کو بیان نہیں بدلنے دوں گا. اگر میں اس کو گالی سمجھ کے آگے دلائل دوں گا تو بعد میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گالی نہیں ہے. ابھی کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ دیکھیں جی یہ کوئی گالی ہوتی ہے کسی کو ایسے کہنا؟ وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے جب میں 10 بار پوچھا میں نے آپ سے کہ اس کو ڈیفائن کریں یہ گالی ہے یا نہیں ہے. جناب میں نے سوال مجھے کیا، پتا کوئی تھا بیان آپ نہیں کا، میں دیا. جانتا ہوں آپ کی رگ رگ سے واقف جناب ہوں میں نے بیان نہیں کہ جب دیا. آپ پھنسیں گے آپ اپنے بیان سے مکریں گے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب جی آپ یہ بالکل کوئی دلیل گالی کر رہے ہوتی ہے. ہیں. حد ہو گئی ہے بھائی. کوئی گل نہیں، ہوتا ہے اس طرح.
अच्छा एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरे पास भी यहाँ मगरिब का इफ्तार हो गया है, बस अब नमाज के लिए इंशाल्लाह तैयारी है। मैं मुख्तसरन करके ना, आप देखें जब ये वैसे भाई ने जब तकरार की थी ना इस बात पर कि ये गाली है या ये सख्त लफाज, वो कह रहे थे ये हम तो इसको सख्त लफाज के जुमरे में लेते हैं कि ये सख्त लफाजात हैं। और डॉक्टर गलत बात साहब मेरी की इस तरफ पर नहीं तकरार मंसूब करनी, गलत बात मेरी तरफ मंसूब नहीं करनी। आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वासे साहब आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसको आप ये कह रहे थे। एक मिनट मेरी बात तो सुन लेना। सर मैंने जो कहा ना, मुझे उस चीज़ का इल्म है। आपने अगर मेरी तरफ बात मंसूब करनी है तो रिकॉर्डिंग पहले लेके आए, लेके उसे सुनवाएं। अच्छा सुन लेना, बात सुन लेना, ठीक है रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, मुझे बात तो करने अपनी दे। बात करें, मेरी नहीं। ये मुझे अपनी इसका अपनी हवाला दे दिया, शरीफ का बात कौन जिसकी सी हुई हदीस उसी की है? बात कर रही है कि किसी की करनी है? अच्छा जी मेरी गुजारिश बात है। करने हवाला देना। दे जी ये। अच्छा जी एक मिनट एक मिनट जी सरकार, एक सेकंड। गुजारिश ये है कि बारी बारी बात करते हैं, ठीक है? मछली मंडी ना बनाएं, जो बनाएगा मैं बिला जी रियायत ठीक है उसको- यूसुफ भाई, मुझे 1 मिनट टाइम दे, मैंने जाना है, मुझे जरा इनसे ये आपकी बात हदीस शरीफ लेने। ये कौन से हदीस शरीफ है बुखारी की जी? बुखारी तो नहीं उन्होंने कहा था, उन्होंने हदीस कहा था। अब अपने पास से अल्फाज ना जोड़ें आप। उन्होंने बुखारी कहा है, बुखारी की हदीस है। नहीं कहा, कहीं नहीं कहा बुखारी उन्होंने। अगर मैंने वो बुखारी कहा तो की भाई कहा है, गलती से इतने लोग नीचे सुन रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताएं बशरत कौन सी नहीं, हदीस अगर कहा है कहा भी इसने। है डॉक्टर साहब अगर कहा कहें कि मैंने गलत कहा है, कहें कि मैंने झूठ बोला है। हदीस का आप कहें कि मैंने झूठ बोला है। ये एक स्कैम आप बुखारी की हदीस कहा है इन्होंने। आप सुबह मिर्जा साहब भी ऐसे ही करते थे कि ये बुखारी में लिखा हुआ है हाजा खलीफतुल्लाह अलमादी, इन्होंने भी आके कह दिया बुखारी में है। ना 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 झूठ ना यहाँ इकरार करें कि मैंने झूठ बोला है, झूठ नहीं बोलना। इकरार करें कि मैंने झूठ बोला है, आपने बुखारी शरीफ का नाम लिया है। या रसूल अमीनी साहब है, या रसूल अमीनी साहब आपने बुखारी शरीफ का नाम लिया, इतने लोग सुन रहे हैं नीचे। यार मेरा नहीं हाई, मैं आपका करके जाऊंगा, मेरा हाई नहीं है। यार नाम मेरा लग जाना यार, तेरे दिल दा पटाखा पै गया, नाम मेरे ते लग जाना यार, ना ब्लड प्रेशर आई कर आदीस लगी हो पढ़। ओ भाई मेरा माइक ना म्यूट करें, कसरत हो जाएगी। और मेरे दिल को छड़ दे, फट जाए, टोटे टोटे हो जाए, और मैं कर लूंगा इलाज उसका। मुझे ये बताएं कि इधर इकरार करें कि मैंने झूठ हुन 10 रसूल भाई, आपने झूठ बोला है, तेरे नजदीक मैंने झूठ बोला है, इसका इकरार करें। साहब एक सेकंड, जा साहब एक सेकंड होल्ड करें ना। नहीं कढ़नी। हाँ जी अल्ताफ भाई मैं तो माइक के पास आके बात करें, अल्लाह दूसरा ने मना कीता गाली नहीं कढ़नी। अल्ताफ भाई एक तो माइक के पास बात करें, दूसरा मुझे बताएं आपने बुखारी का लफ्ज कहा था, मैंने क्यों नहीं सुना? हाँ जी बताएं। याद कि मैंने कहा अगर मैंने कहा अगर मैंने कहा है तो अगर मैंने कहा है क्या कह रहे हैं कि नहीं कहा आपने? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओए आप है जे मरबी झूठ बोलना ले जाओ इन्हां नूं। मैं तो फिर वही गल जार सुन अच्छा ज़ियारत साहब तेरे कान बाजे ने, उन्होंने क्या ओए अगर मैंने कहा है तो फिर माफी मांगे इधर के मुझसे गलती हुई है। एक मिनट खामोश होना है। आपने माफी मांग ली है कि अगर आपने कुरान पे गाली का इल्जाम लगाया है? ਤੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ है। चेक करें अब बेचारे इनका हालत चेक कर लें। अब झूठ बोलने पे आ गए मेरा हैं, वीर आखिर पे मेरा वीर झूठ बोलने पे आ गए हैं अब। अच्छा अच्छा भाई वो कह रहा है कि अगर मेरे मुंह से निकला है आगे रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कहा था अल्लाह की जाके शर्म मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा आपको, कहीं भी नहीं जाने दूंगा। कैसी कैसी सर आपने कहाँ जाना है? मैंने झूठ बोला है। हजरत अबू बकर आपने झूठ पहले मैंने यहाँ इकरार करें कि मैंने झूठ बोला है, नहीं पा सकता वो पहले इकरार करें कि मैंने झूठ बोला है, उसके बाद अगली बात होगी। इधर इकरार करें कि मैंने झूठ बोला है, झूठ बोलते हैं। आपके मिर्जा साहब भी यही करते थे, उन्होंने भी यही लिखा हुआ है। आपने इकरार कर लिया है, आपने खलीफतुल्लाह अल-महदी मंसूब की है। कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस से हाजा खलीफतुल्लाह अल-महदी, यही काम इसने किया। करने का इकरार कर माफी मांगे इधर, शाबाश। ओए माफी मांगो, माफी मांगो, शाबाश। गाली ओए माफी मांगो, माफी की है तू, माफी मांगो, माफी, शाबाश। और माफी तू मांगे तू खुदा वाल गाली मंसूब कीती है क्या? खुदा ताला गाली काटदा ही नाउज़ बिल्ला। इतने ना कुरान दी आयत बड़ा ना और शोर पाण दो डॉक्टर साहब इन शोर पा लैन दो ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि क्या हदीस दी गाली लिखी है? मेरे तो पंडे आई भाई क्या बुखारी च गाली लिखी है? आपने क्या कि मेरे तो हदीस थोप गाली लिया लिखी तो है। खुदा ताला पे इल्जाम लाया। ओ एक तुम्हारे मिनट ठहर जा, इल्जाम लगाए। पहले ये इसको कहो। वहाँ इल्जाम लाया वे कि एक ऐसे तो गाली नहीं बात होती है हो, ऐसे खुदा ने नहीं बात गाली होगी, कटी नहीं। है।
भाई ये गलत बात मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ पे आपके मुरब्बी साहब ने झूठ बोला है। और सर आप और मौलवी साहब कितने आपने लोगों ने भारत पे सुना है? इतराज किया था, आपने भारत पे इतराज किया था जो हमें कुरान से मिल गई है, आपने भारत पे इतराज किया था पूरा पढ़ो। वो आपकी बड़ी वो बात सारी जो होगी लोगों ने सुन ली है। अब इधर से बात के पीछे भाग गए। अच्छा बात सुने अब यार ये मुक्के आपने मुझे लड़ाई के दौरान मारने थे, अब जो याद आ रहे हैं ना अपने मुंह पे मार लो। आपने पहली टर्न अब जो मुक्के आपको याद आ रहे हैं अपने मुंह पे मार लो। ये वो सारे उस वक्त मारने थे। बात खत्म होगी, आप मुझे इसका झूठ का जवाब दे लेंगे। आपको ही भारत में मिल गई है। वो यार पागल हो गए, इन्हें ले जाओ। पागल हो गए मेरे से ही। भाई ये ओए हरामियों की कसरत होगी यार, सुन हरामियों की कसरत। ये देख सर आपने ही भारत पे इतराज किया था। इस मुरब्बी ने झूठ बोला है, ये झूठ पे माफी मांगे फिर आगे बात होगी। अच्छा जी, बात झूठ पे माफी मांगे इसको। अच्छा जी, अब रज़िया रसूल साहब 2 मिनट के लिए माइक बंद कीजिएगा। यूसुफी साहब ने कोई बात करनी थी, इस तरह फिर जाती हो जाएगी। जी यूसुफी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले हदीस शरीफ क्लियर बात कर ये लेते है, हैं। ये कौन सी किताब की हदीस है जी? क्लियर बुखारी शरीफ का पता चल गया इसने झूठ बोला है। ये बताएं कौन सी किताब की हदीस है? नहीं देखे हदीस है। ज़िया साहब अगर आप पसंद करेंगे तो फिर मैं नीचे गुजारिश करूंगा। ये हदीस शरीफ में भी झूठ बोल रहा है, मैंने इस हदीस में भी झूठ बोल रहा है। अभी अगले मौजू पर मैं चलते क्लियर हैं। करने के बाद जाऊंगा। फिर 1 मिनट होल्ड करें। मैंने नहीं जाने देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है इसने। अब आप फिर खामोश होके बैठे प्लीज। भाई पहले आप मुझे उठना ना करें, पहले किताब के नाम पे झूठ। खामोश होके बैठ जाएं, बहुत हो गया प्लीज। हेलो जी, ये हदीस में भी झूठ बोल रहा है। आप मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं। साहब अब अगर आप दोबारा बोलेंगे तो फिर मैं लिहाज नहीं करूंगा। लास्ट वार्निंग। चले ठीक है, मैं जाने लगा हूँ। मैं यूसुफी भाई को, यूसुफी भाई ये हदीस शरीफ पे झूठ बोल रहा है, इससे हदीस शरीफ लेनी है आपकी मर्जी है। मैं जा रहा हूँ। यूसुफी भाई जरा अब आपका, क्योंकि आप काफी देर से बात करना चाह रहे थे, फरमाइए। बात यह है कि मेरे पास भी यहाँ मगरिब का टाइम है। एक तो वासे साहब ने जिस चीज पर बार बार तकरार की ना दोनों बातों पर, अब ये बोलने देते नहीं है। दोनों बातें साबित हुई हैं। एक तो ये अगर वो कह रहे थे गाली है तो गाली भी साबित हुई कि ये मिर्जा साहब ने गाली दी है। उसके बाद अपनी बात से ही मुकर गए, अपनी बात से ही फिर गए। जिसको ये कह रहे थे जी सख्त अल्फाजात हैं, सख्त अल्फाजात को गाली देते हो। मिर्जा साहब की इबारत से भी साबित हो गया। कैसे? मिर्जा साहब की इबारत से भी साबित हो गया, जिसमें मिर्जा साहब कह रहे हैं कि अच्छा मौलवी साहब ने बात नहीं कर सके तो ये बात करेंगे मौलवी साहब के हक में। अब हैं वो बात नहीं कर जी, सके। आपको बात करनी नहीं आई ना, आपके पास कुछ रहे थे। एक ही बात को बार-बार करते दोनों तरफ। ये मौलवी साहब सर चढ़ के बोले दोनों मौलवी साहब दोनों बातों पर कुरान की इबारत पे इतराज किया है। नहीं थे, दोनों बातों पर आप झूठे साबित हुए हैं। और छोटे मौलवी साहब आपने कुरान की इबारत पे इतराज किया है। बाद अब आपने ये तरीका शुरू कर दिया है कि ऊंची चीजें बोलना शुरू कर दो और एक दूसरे को प्रवोक करना शुरू कर दो। यूसी भाई शोर ये मेरी बात, आपके पास अल्ताफ साहब जब हदीस हो गया फिर बात कीजिएगा। आपके पास हदीस नहीं है, हदीस लेकर आई। हाँ पहले हदीस लेकर आए फिर बात करेगा। जिस चीज को वासे साहब ने कहा ना बार बार इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है। बार बार जिस चीज को ये दोहरा रहे थे कि ये गाली है या सख्त लफ्ज है, गाली है या सख्त लफ्ज है, दोनों बातें साबित हो गई हैं और फिर खुद आपके घर से साबित हुई है ये बात। थोड़ी सी गैरत ईमानी। अब ये बात साबित होने के बाद अब आपको तौबा तैब होना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई है। मैंने ये बात, आपने कमेंट्स देने थे, आपने दे दिए, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब हम यहाँ पर नया जी अल्ताफ साहब हदीस तो देना। अल्ताफ साहब ने अगर बात करनी है तो ये हदीस देंगे, उसके अलावा ये बात नहीं करेंगे। यूसी भाई मैं आपको एक शरीफ नफस इंसान समझता हूँ। यूसी भाई बात यह है कि आप हदीस दें, आप जो मर्जी कहें। आज तो आपके पास नहीं मुझे आ रही हदीस आपने देनी है, हदीस सुन भी लिया करो यार। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। बहुत भैड़ी आदत है ਤੁਹਾਨੂੰ, इस आदत को बदलो। देखो मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन आज मैंने आपकी गैरत ईमानी देखी है कि आपका एक मौलवी जो कि चूंकि आपके कायदा रखता है, उसने कहा है कि कुरान में अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफर नबाशत, वो गाली दे सकता है नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, लेकिन तुम्हें इजाजत नहीं है गाली देने की। नहीं कहा ये मंसूबा के लिए जुमला ना उन्होंने कहा, ना उन्होंने कैसे बात की। नहीं, उन्होंने कहा खालिक कायनात है, वो खालिक है। उन्होंने ये भी कहा ना कि वो हर काम कर सकता है। हाँ वो बेशक हर चीज पर कादिर है, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि वो जानता है, वो जानता है किस मखलूक को किस तरह उसने पैदा फरमाया, कौन क्या है उसको जानता है, वो कह सकता है, वो खाली को मालिक है। कहने का मकसद है ना कि अल्लाह ताला जो मर्जी आए कह सकता है, वो कोई भी बात नहीं दिया कि वो मखलूक के अंदर से कीड़े निकाले। मखलूक को मना फरमाया, बिल्कुल गाली भी मत दो। ये आप जुमला मंसूबा कर रही हैं, उन्होंने नहीं कहा। अच्छा एक मिनट
ये मजलिस तफ्सीर खत्म हुआ दिन रात जो मेरे साहब को गालियां देते हैं या उनको नौजुबिल्लाह लान तान आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलें अल्ताफ साहब। आप कोई कई लफ्ज मुझे समझ नहीं अच्छा, आता। मुझे ये बताएं कि जो मजलिस तफ्सीर खत्म नबूवत के उलमा जो हैं जो हज़रत मिर्ज़ा साहब को गालियां देते हैं और मजलिस के इसके बाद आप क्या कह रहे हैं यार? एक मिनट रुकिए, मुझे अपना मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कहा है उन्होंने। थोड़ा ऊंचा बोल लेना, मुझे आवाज ही नहीं उनकी आ रही। उनकी आवाज़ हम सबको बेहतरीन आ रही है, मुझे बहुत कम आ रही है आवाज। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਦੂਰ, ਫੋਨ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ओके डॉक्टर साहब मुझे करीब आ जाए। ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੋ, ਸ਼ਾयद ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਾਈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਬਡਸ 12 ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਕਰ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਤੇ ਲਾਈਏ ਫੋਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈੱਡਫੋਨ। डॉक्टर साहब यहाँ पे ना 12 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ। हाँ, लेकिन बात मुकम्मल कर लें हदीस के मुताबिक, फिर ठीक है, बंद करते हैं। अल्ताफ साहब हदीस दें। जी अल्ताफ़ भाई इनको हदीस दें दी है, इनको बड़ी स्क्रीन पे करिए अल्ताफ़ भाई को। अल्ताफ़ भाई हदीस पढ़ें और इनको तसल्ली से पढ़ के सुनाएं। अब कोई बंदा बोले नहीं प्लीज़, ठीक है। बुखारी शरीफ की हदीस है, उन्होंने जो कहा है वो देनी है उन्होंने। उन्होंने बुखारी का मैंने नहीं सुना, और उन्होंने भी कहा है कि अगर आपने मैंने नहीं ये सुना ना, कहा हमने है तो सुना ना। तो भाई अगर उन्होंने ये कह दिया है कि अगर मेरे मुंह से कहीं निकल गया, हालांकि वो भी पुख्ता नहीं है इस बात के ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि साहबन मुंह से बुखारी का नाम निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हदीस पेश कर रहे हैं और किसी मुनासिब किताब से पेश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास ना इधर मगरिब की नमाज अब तैयार हो गई है, हाँ, और हदीस की बात मैं सुनने इंशाल्लाह पे मगरिब के जाइएगा। बाद सब कर। जी अल्ताफ़ भाई बात करें जी, मुकम्मल करें बात अपनी। मैं जितनी देर गाड़ी पार्क कर रहा हूँ ना, उतनी देर आपकी बात सुन रहा हूँ। आवाज नहीं मुझे आ रही किसी की भी। जी अल्ताफ़ भाई बात करें। तो मैंने मसनद अहमद की हदीस लगा दी है, साथ में नंबर भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं सकता, आप अगर पढ़ सकते हैं तो उसको उसका तर्जमा पढ़ के सुना देंगे। आप ना सुभान भाई सिर्फ इनको हदीस नंबर और किताब का नाम बता दें, पढ़िए खुद ही लेंगे घर जाके ना। ये ऊपर लिखी हदीस नंबर भी लिखा हुआ है, साथ उसकी किताब का नाम भी लिखा तो मैं बाद में बात करता हूँ, मैं नमाज पढ़ने लगा। मसनद अहमद क्या है डॉक्टर साहब? एक मिनट ज़रा मैं बड़ा कर रहा हूँ सिर्फ देखने के लिए। नहीं, मैं बड़ी स्क्रीन करना चाह रहा हूँ, छोटा करें प्लीज़। अच्छा डॉक्टर साहब ये कोई एतराज़ नहीं है, वो अपने एतराज़ से ही हट गए थे कि जी खुदा ताला ने कहा है खनाज़ीर है, खुदा ताला ने कहा है कल्ब, तो क्या इंसान भी कहे? तो जो अगर यही बात मैं नबी के वसल्लम की तरफ मंसूब करूँ तो फिर ये क्या कहेंगे, वो इंसान थे या खुदा थे? अगर उन्होंने किसी को खंजीर कहा हो और खुदा ने किसी को खंजीर कहा हो तो फिर उन पर क्या हद लगेगी? ठीक है, समझने वाली बात है। बाकी एतराज़ करने वाला एतराज़ कर देता है, सोचता नहीं कि कहाँ तक एतराज़ जाएगा। हम वैसे ही हदीस नंबर पढ़ना, मसनद अहमद की हदीस नंबर क्या है? 15713 15713 मसनद अहमद 157 है, 1 नहीं है। 1574 1574 नहीं है, 15713 3 हाँ। 15713 15713 15173 15713 15713 15713 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਹਾਲ ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। चेक करो, 15713 चेक कर लो। अच्छा, इसके अलावा मेरी आवाज़ अब आ रही, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी आ रही। जी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा, इसके अलावा एक हदीस कंज़ुल माल से भी है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने का जो है वो जिक्र किया है और फरमाया है कि मेरी उम्मत पर एक इंतशार का ऐसा आलम आएगा कि वो अपने उलमा की तरफ हिदायत के लिए, हिदायत आगे वो जो है वो ब्रैकेट में है, हिदायत के लिए जाएंगे तो वो क्या देखेंगे कि वो सूअर और बंदर होंगे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के रसूल ने सूअर और बंदर भी उलमा को कहा है, यहाँ तो ये रसूल कहे कि सूअर और बंदर गाली नहीं है, तो फिर तो बात या फिर खत्म हो ये कि जाती है। नाउज़ुबिल्लाह रसूल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फिर जैसे वो कह रहे हैं, फिर वो बात वहाँ पे एतराज़ बन जाता है। हाँ, ये इनका म्यार है, हमारा म्यार नहीं है। लगभग से हमारा म्यार कुछ और है। ये वाकई से कह रहा था कि तुम्हारा म्यार और हमारा म्यार और बिल्कुल हमारा म्यार इन अहादीस को समझने का बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसी पर हम हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहि सल्लम को परख लेते हैं। सिंपल सी बात है।
اس کے علاوہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں علماء کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق کہا گیا ہے. اس میں کنجر بھی آ جاتے ہیں, اس میں کھوتے بھی, کتے بھی, وہ بھی آ جاتا ہے, ہر چیز آ جاتی ہے اس میں. جی سبحان بھائی سر ایک یہ متکبر ضیاء صاحب بھی ایک لائیو پر بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے, کل یا پرسوں کی بات ہے, یہ والی حدیث مانگ رہے تھے, یہ بھی ذرا لگا دیں نا, بدترین مخلوق والی. یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. سر ایک متکبر انسان کو خدا تعالیٰ خنزیر بنا دیتا ہے, یہ تک فرمایا گیا ہے حدیث کے اندر, اور یہ حضرت عمر سے روایت ہے. تو کیا حد لگائیں گے پھر اس روایت پہ یہ؟ اچھا ایک اور حدیث بھی لے لیں, ابھی تو وہ فرقان بھائی آن لائن نہیں ہے, اگر وہ ہوتے تو بڑی حدیث نکلیں تھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس فرقان بھائی آپ کے پاس ایڈ ہے نا فرقان صاحب سے پوچھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب؟ جی فرمائیں. نہیں ہاں فرقان ابھی تو آن لائن نہیں ہوں گے, میرا نہیں خیال میں آن لائن ہوں گے, لیکن جب وہ آن لائن ہو جائے نا, ان کے پاس انہوں نے تو بڑی اس پہ تحقیق کی اور ان کے پاس بہت مواد ہے حدیث کا. بلکہ جب وہ کسی براڈ پہ جاتے ہیں, کہاں سے کہنا کہ کوئی حدیث نہ پڑھے, نہیں تو ہم بڑی یہاں پہ شور مچائیں گے. یہ تک الفاظ میں نے سنے ہیں براڈ پہ پر, کسی براڈ کے اوپر یہ حالت ہے ان کی. اچھا وہ دوسری حدیث آپ کو چاہیے تھی علماء والی, آسمان کے نیچے بدترین مخلوق والی, ہاں جی وہ بھی ڈھونڈتے رہے ابھی. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, پھر اجازت دیں, پھر ہوتی ہے ملاقات ہے. کیوں, کہاں جا رہے ہیں؟ بیڈ ریسٹ. بس وہ حدیث کی بات مکمل ہوتی ہے پھر چلتے ہیں. کوئی عمران 101 ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ جی حدیث نمبر غلط ہے, میرا خیال ہے. مسند احمد کی 15713 حدیث انہوں نے بتائی تھی, وہ جا کر دیکھیں. ڈاکٹر صاحب چٹکی کیویں بجائی ہے یار, ایسا نہیں سکھاؤ. اصل میں نا کون بول رہا ہے, محسن بھائی بول رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عربی نمبر ہے, یہ انٹرنیشنل سمری نمبر نہیں ہے, عربی نمبر ہے. عربیوں کا اپنے ہی نمبر ہوتے ہیں ان کے. عربی نمبر ان کو بتایا ہے 15713. ہاں جی مسند احمد میں جا کے یہ دیکھیں. انہوں نے ایسی حدیثیں نکال دی ہوئی ہیں, یہ جو ہاں جی ایک وہ حدیث جو ہے نا حدیث سے متعلق وہ اماماً مہدین ہوگا, انہوں نے سرے سے اب کتابوں سے بھی نکالنی شروع کر دی ہیں, وہ کتابوں سے بھی نکال دی انہوں نے. ایسے بدبخت یہ لوگ ہیں. اسی کٹ کے بکھا دیں گے انہوں نے, ساڈے کو کتنے کتنے سیو ہون گے. ہاں جی ساڑھے کو تو ہے, میرے کو تو اسکین پہ ہے نا. اچھا میں وہ نکال رہا تھا, وہ امام بھیکی کی کتاب سے ہے جو مجھے حوالہ مل رہا ہے, برا میں دیکھتا ہوں شاید کوئی اس کا انٹرنیشنل سمری نمبر مل جائے. نیچے کوئی پپو ملک صاحب ہیں, وہ اپنے کوئی ہیں, صحیح بات کرتے ہیں. اوپر لے کے دیکھ لیں, سڑک ہی جانا ہے. یہ تصویر بڑی کریے گا. لو جی وڈی کر دیں. ویسے ہوں سسٹم رکھو جا کہ نا فوٹو وڈی کرو, اس کو پیسے لگو. ہیلو سر, یہ جے روایت اس طریقے سے میں لب جائے گی.
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸ ਸਕਦੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਹੈ ਹਦੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ नहीं कह सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने मेंबर पर फरमाया, लोगों तवाज़े इख्तियार करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह की खातिर तवाज़े इख्तियार करता है तो अल्लाह इसे रिफ़त अता करता है। वो ख़ुद को अपनी नज़रों में तो छोटा ख्याल करता है, जबकि लोगों की नज़रों में अजीम होता है। और जो शख्स तकब्बर करता है अल्लाह इसे पस्ती का शिकार कर देता है। वो लोगों की निगाहों में छोटा होता है, जबकि वो अपने आप को बड़ा तसव्वुर करता है, हत्ता कि वो इनके नज़दीक कुत्ते या खंजीर से भी जलील व हकीर होता है। कुत्ते तो खंजीर तो घट हकीर केड़ी मखलूक अच्छा, होगी, अभी फिर खुद सोच। किस भाई ने, वासे भाई, किस जी भाई जी ने यहाँ पे कहा था कि ज़िया रसूल ने उस हदीस का इनकार किया कि वो हदीस सिरे से मौजूद नहीं है, जो किस भाई ने कहा मैं था यहाँ सुभान पे? भाई मैं बता देता हूँ, इन्हीं की कोई लाइव थी, इन्हीं की कोई लाइव थी, वहाँ पे कोई जिक्र चल रहा था। अच्छा अब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो ज़िया भाई ने ज़िया, कहा या किसी और ने कहा, लेकिन इन्हीं के कोई दोस्त थे जिन्होंने ये अच्छा, जिक्र किया कि जी जी अगर तो जी ज़िया रसूल ने इसका इनकार किया होता तो इसके उस्ताद है मौलवी मुबशर शाह, उसकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना न्यू ख़त्म नबूवत ऑर्ग, उसके ऊपर ये हदीस लगी हुई है और उसने खुद उसको ज़ईफ साबित करने की कोशिश किया हुआ वहाँ पे। ये उसके अपने वेबसाइट पे इसके उस्ताद के वेबसाइट पे लगी हुई है, इसके उस्ताद पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले जी वालेकुम सलाम जी मास्टर अहमद 98 जी। जी, मेरा अल्लाह वाले से एक सवाल था मेरा छोटा सा। जी जी कर लो जी, छोटा ही जवाब करे हो। जी अल्लाह वाला भाई, आपको मैंने प्राइवेट लिखा है, आप मुझे बाद में अगर आपको फ्री टाइम आपके पास होता आप मुझे लिख सकते हैं? जी ठीक। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह वाले भाई मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ। नहीं ठीक हो गया। आने वाले ज़माने के उलमा जो हैं उनके मतलब एक हदीस मुझे अभी सामने आई थी, वो मैं देखता हूँ दोबारा अगर मुझे मिलती है तो उसमें भी यही अल्फाज थे जो भी अल्ताफ़ भाई जिक्र कर रहे थे ना, उसके मिलते जुलते अल्फाज थे। मैं देखता हूँ। मीर भाई अपना कैमरा बंद रखें प्लीज़। डॉक्टर साहब आप हैं यहाँ पे तो दो दो तीन तीन डॉक्टर हैं। क्या कह रहे वासे हो? भाई, आप कौन सी हदीस ढूंढ रहे हैं, कंजल माल वाली या मामली की वाली? वैसे मेरा ख्याल बैक पे गया है, आ रहा है और कंजुल माल की थी शायद। हाँ जी, कंजल माल वाली हदीस है, उसमें सूअर और बंदर कहा गया है। वो छोटी सी हदीस है, वो ज़्यादा लंबी नहीं है वो।
दरवाज़ा बंद कर देना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ते मेरा वीर चुप करके बैठे हो जे बुलाया ये तो सलाम दुआ करो ना। गल वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। नजीर जवेद भाई क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ ठीक ठाक हो? शुक्र है तुसी हुण कह रहे दी बरोडा ते जाना बंद करता है, बड़ा मजा आंदा है। जी जनाब, वो रवायत पूछी थी, वो रवायत लगाएं जरा, कौन सी है जी, किस किताब की है? किन्ना ही बरेड़ा जाना, एक मैंने जवाब दे लेना, किन्ना ही बरेड़ा जाना बंद करता है? जेड़े गारंटी सन। अच्छा अच्छा आ एक जी सुभान साहब, वो लगाएं जासूस जरा साहब आ गए वो ना। हदीस शरीफ जो आप कह रहे थे, जो बुखारी के नाम लेके आ आपने जेड़ी लगी कही थी। आ जेड़ी हुण लगी ना इमाम बेहकी वाली, आ वेख लो, आ हदीस पहले पढ़ लो। वो ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਈਫ आसमान ਰਵਾਇਤ के ਹੈਗੀ, नीचे ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ अच्छा ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਈਫ ਕਹਿਣ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਜਲਿਸ ਤਫਜ਼ੀਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। इसरार अहमद साहब ने इस हदीस का जिक्र रो और जनाब वो हदीस शरीफ लेके आए जो आपने झूठ बोला था हदीस शरीफ पे, वो लेके आए। दोहनाक के आसमान। ये जितने लोग सुन रहे हैं ये जरा देख लें इन मरबियों का हाल। पहले इस बंदे ने झूठ बोला, बुखारी शरीफ का नाम लिया, फिर इसने हदीस शरीफ में भी झूठ बोला है। इसने जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की है वो हदीस में नहीं है। और मौलवी साहब गल सुन, झूठ बोला है इसने। इन लोगों को देख लें कि कैसे बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। कुरान च वो हदीस लेके आए, शाबाश। गल सुन लो चुप करके। वो हदीस लेके ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ओए हदीस लेके आओ। मिर्जा साहब कहते हैं कि झूठ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਲਮ झूठ ਚ बोलना ਇਜ਼ਾਫਾ आया, खाना है। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਚ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨੇ। ले माइक म्यूट कर रहे हैं, और शर्म करो, माइक क्यों म्यूट कर रहे हो? मैं नहीं वो हदीस लगाओ शाबाश जिसमें झूठ बोला है। यार कौन कर रहा है इनका माइक म्यूट? यार ना करो यार, इनके साथ ना करे। ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਯਾਰ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ हदीस ਦੀ। लेके आओ शाबाश। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਖ ਲੈਣ ਦੋ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈਣ ਦੋ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੀਖ ਲੈਣ ਦੋ, ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਚੀਖ ਲੈਣ ਦੋ ਇੱਕ ਰਾਂ ਨੂੰ। माइक क्यों म्यूट कर रहे हो बार बार? ये क्या ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚੀਖ ਲੈ। ये अभी बताता हूँ ना आपको। आप जो ड्रामा लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हदीसों पे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हद हो गई है। लगाएं जी वो हदीस शरीफ कहाँ पे है? आपने सच बोला ना कुरान पे गल साबित करके, अब चीख लें दुख के अंदर। मिर्जा साहब कहते हैं कि वो कंजर जो बल्दु जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ये हदीस हाँ तो आप तो शर्मा भी नहीं रहे। हदीस शरीफ लेके आए ना जो झूठ बोला है आपने। आप तो उन कंजरों से भी बात। वो हदीस शरीफ लेके आए, शाबाश। हैं? हदीस शरीफ लेके आओ, जल्दी करो, शाबाश। और सुभान साहब हदीस लेके आओ। मिर्जा साहब फरमाते हैं कि झूठ बोलना गू खाना एक बराबर है। ज़िया भाई, मिर्जा साहब फरमाते हैं कि जाहलों के आगे तो बड़े झूठे बंदे की ये निशानी होती है, जाहलों के आगे बड़ी लाफ मारते हैं। बात सुने, जब कोई दामन पकड़ के पूछे लाओ कहाँ है सबूत, तो घुस जाते हैं जहाँ से निकले थे। मिर्जा साहब फरमाते हैं ये। मिर्जा साहब कहते हैं झूठे बंदे से जब सबूत मांगो तो घुस जाते हैं जहाँ से निकले थे। इन्ना दुख कुरान दी गल साबित करन दा, इन्ना दुख। सबूत लेके आओ, सबूत। ओए आखिर दिन होना चाहिए, कुरान दी गल साबित कीती है जिन्ने। हेलो जी, बहुत डुब के मर जा मौलविया। ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। हदीस शरीफ पर झूठ बोलते हो। दोबारा म्यूट करूंगा। शर्म नहीं आती तुम लोग? ज़ियाद साहब मेरी बात क्यों म्यूट करोगे भाई? झूठ हदीस पे बोला तुम लोगों ने, अब लगा नहीं रहे यार। हो गई है भाई, चुप करो ना जरा, चुप करो। हदीस सही मिर्जा साहब ने कहा था कि जो बल्दु ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। आसमान कानून नहीं आनी शर्म। उलमा आसमान के नीचे बस तीन मखलूक होंगे। लेके आए जी वो हदीस। जिन्हां नाल भी भैड़े आसमान है उसमें। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये हैं जिनके बारे में मिर्जा जीरा नाल भी मुसंद अहमद वाली जो ना वोदरा लगाए। एक मिनट यार हदीस ते देख ले, चुप कर जा, एक मिनट सब्र कर ले। मुसंद अहमद वाली हदीस लगाएं, मुसंद अहमद वाली हदीस लगाएं जी जरा। मैं दोबारा लगाता हूँ, मुझे क्या,
मेरे किहड़े पैसे हाँ लगने जी, और ये बदतरीन मखलूक लगाए वाली थे दोबारा शरीफ से अकाउंट लगानी है यार। एक मिनट चुप कर जा, लान लगे हैं कि तू थत्था है, बोली जान रहे हैं, बोली जान रहे हैं। मुसंद अहमद वाली हदीस लगाएं जी, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ करा रहे हैं जियाद साहब। खैर है, जियाद साहब एक मिनट जरा, बर्दाश्त ਤੁਹਾਡੀ नहीं हो रहा, हदीस माइक ना म्यूट कर रहे हैं। एक मिनट हाँ जी, फिर कर अच्छा, देते हैं। चलो इस हुन हदीस करो जी के गल, अगर हुन नहीं आप- करदा, आप हुन माइक करो। क्यों म्यूट अल्फाज पढ़ो जी, में- इसको पढ़े हदीस। अच्छा हुन इस हुन ये जी माइक म्यूट ना है, म्यूट करो करें जी अब। गल। इस हदीस के अगर हुन नहीं हुंदा, हुन नहीं हुंदा, हुन करो गल। इस पढ़े जी हदीस हदीस के शरीफ। इस हदीस के अगर आप अल्फाज देख के गूगल में सर्च करेंगे तो आ जाएगी, नंबर से नहीं आएगी। पढ़े क्या लिखा हुआ है? गूगल जाओ, हजरत मौलाना गूगल को जाओ पहले, रहमतुल्लाह ओ हदीस शरीफ पढ़े या पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मेरे ये मैंने- जितने लोग सुन रहे हैं ये देख लें इन मर्जियों का हाल। इनका देख सुभान ले साहब हाल, की ये आने की कैसे नजदीक धड़ल्ले गई से यार, अल्लाह के पढ़ रसूल लेना। पे झूठ बांधते हैं। पढ़ ले, पढ़े हदीस शरीफ शाबाश। नहीं ना है पास। पढ़े या पढ़ क्यों नहीं रहे? आपने ये पढ़ ले, आपके पढ़ लिए तोहफा है, ये पढ़े पढ़े। ओए हदीस शरीफ हराम पढ़े। नहीं होती। मिर्जा साहब का फतवा आप पे हराम बड़ा नहीं फिट आ रहा है। मिर्जा साहब फरमाते हैं कि हराम जो नहीं होती वो कंजर जो वल्दु जिना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ इनको ਵੀ नहीं आ ਜ਼ਿਆਦ रही। ਸਾਹਿਬ, की कसरत है। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਤਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਖਮ ਮਲੀਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾते हैं कि वहाबी देवबंदी शिया काफिर मुताद जिंदीक ने इन्हां दे मां पिओ दा निकाह जायज़ ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। चेक करो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ये ਵੀ ਜਾਇਜ਼ माइक नहीं। म्यूट ना करो अब, माइक ना ठीक है, म्यूट तुसी करो, बोल दो माइक ना जनाब। म्यूट करो अब। बंद करो उस माइक का। ओ भाई हाँ, झूठ तुमने बोला है या मैंने बोला है? झूठ तुम बोल रहे हो अल्लाह के रसूल पर। काफरा ने दोबारा सुनाओ फतवा, फतवे ते आ गया मैं ते। हजरत इस हदीस शरीफ में दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है वो जो बकवास तुमने की थी नबी पाक। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी आला हजरत साहब ने फरमाया कि वहाबियों का खुदा जो है ना वो लबातत अच्छा। करवाता है इन्ना तो नहीं कुरान दे ये डॉक्टर साहब फतवे ला लो ठीक मते। और वो मुश्तजनी वहाबियों का साहब, खुदा माइक में- मुश्तजनी करता है। ये हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने यही काम ये है करना है। माइक म्यूट करने वाला बता दे, मैं चला जाता हूँ। अब आप सर, यही भी पता है गाला सुना आप रहे लोगों हैं। के साथ क्या हुआ है? कुरान पे झूठ बोला, अच्छा, हदीस वैसे- पे झूठ वैसे मैं बोला। आपको- अब इतनी तुम सर लोग आपने तो कुरान में इतनी गाली तुम साबित लोग कर दी है। नहीं है कि बात ही सुन लो, माइक म्यूट कर रहे हो। ओए आपने तो कुरान में गाली ये साबित कर पढ़े दी है। हैं मरबी अच्छा, मैं जमाते आपको कादियाने जल्दी इकट्ठे बात करके ला जाओ करूंगा। इन्होंने। ये ऐसे दज्जाल और दज्जाल कजाब की हैं, बात है ना, इनकी अल्लाह के बात रसूल है पर ना, झूठ आपको- बांधने से ये बात नहीं आते। ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये जितने लोग सुन रहे हैं सारे देख। अच्छा यार मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ ज़ियार सूद तो झूठे ने आके तुम्हारी आवाज नात कोई- में बहुत अच्छी। चल थल्ले चला गया मैंने उतारा है, पता क्या है, इतनी अच्छी गुफ्तगू की है, तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा बल्कि ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, इतनी अच्छी की है। और जब बंदा हार जाए ना, उसको फिर अपने आप पर काबू रखना चाहिए, जज्बाती नहीं हो जाना चाहिए, उसको खुदकशी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब ये ना आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना खुदकशी की तरफ, तो मैं चाह रहा हूँ ये पानी शानी पिए, अगर इसने रोज़ा नहीं रखा हुआ, आराम करें। जहांगीर साहब एक मिनट, जहांगीर ठीक है, साहब मैं चाह रहा हूँ कि ये जाए, मैं चाह रहा हूँ कि ये जाए, ये जाकर थोड़ा सा आराम करे। चलें ठीक है, मैंने मुझे भी इजाज़त इसने- दें, फिर इंशाल्लाह फिर बात होगी। हाँ अल्लाह जी जी, मैं भी जाने लगा हूँ, मैं भी डॉक्टर साहब से इजाज़त ही ले रहा था। जहांगीर साहब की बात ओके, सुनने डॉक्टर की साहब, इजाज़त देते हैं। जी जहांगीर भाई, जी जहांगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं अभी आप इस भाईजान का जो जज्बात था वो बिल्कुल जायज़ था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो गैर जमात दोस्त है, एक मौलवी तो कुरान को नहीं मान रहा था। जब मैंने कहा मैं आपको जो है नबी ईसा की वफात कुरान से साबित करता हूँ, कहता नहीं 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 नहीं, हदीसा से गल करो, हदीस से। मैंने कहा हदीस ज़ईफ हो सकता है, हदीस गलत हो सकता है, लेकिन कुरान तो नहीं गलत हो सकता है ना। वो भाईजान ये लोग इस हद तक पहुँच चुके हैं कि ये कुरान को नहीं मानते। हदीस की आप क्या बात कर रहे हैं यार, कुरान को रद्द करते हैं ये लोग, कुरान की आयत को कहते नहीं, हदीस से गल करो, गल करना तो हदीस से गल करो, कुरान से गल ही नहीं करनी। तो ये तो इनका मयार है, अभी इस हद तक जा चुके। जज़ाकल्लाह जी, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं रोड पे फोकस कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जी। जी जी, अच्छा ज़ियार सूद नीचे बैठे हो, नीचे बैठे हो, सुन लो। नेक्स्ट टाइम जो है ना, वैसे तो मैं अब्दुल वासिफ भाई ने जो डबो डबो के मारा है ना, तुम्हारे सर पे जो छित्तर मारे हैं, खुदा की कसम मजा आ गया। वैसे
लेकिन नेक्स्ट टाइम अब रखना ना तो आप मेरा जो सवाल है ना उसका जवाब लेके आना कि हज़रत ईसा आसमान पे कैसे गए, ये जवाब लेके आना। मिर्ज़ा साहब को अब जो है ना, अब तुम खैरबाद को, तुम्हारा मिर्ज़ा साहब से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है ना। तुम उनकी तहरीर पेश करो तो वो भी तहरीर पेश किया करो, जो 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 हक में भी जाती है वो भी पेश किया करो, लेकिन कोई नहीं। लेकिन अब आइंदा मेरा सवाल ले जाओ जाते हुए, जिस दिन तुम इस ब्रॉड पे आए तो ये याद रखना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे कैसे गए, उसकी पेपर बात होगी। मेरे भाई भी इस बात को जो है वो नोट करने कि जब ये आए मुझे ऑनलाइन ले, मैं इससे सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी तरफ से भी यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है। ओके जी, ओके डॉक्टर साहब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहेब ये बंद कर रहे हैं क्या ब्रॉड को? प्लीज जरा बता दीजिएगा। जी जी बंद करने लगे हैं वो डॉक्टर साहब। मुझे लगता है वो सानू बिठा के आप सौ गए ने। कितनी देर से बंद करोगे ताकि मैं इन्हों फिर ऑफ कर दूं? करने लगे। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहेब सौ गए अल्लाह लियो। प्यारे डॉक्टर साहेब, डॉक्टर साहब सो गए। डॉक्टर साहब सौ गए ने। चलो ठीक है, मैं उन्होंने कॉल करदा क्योंकि उन्होंने वालों म्यूट भी नहीं है ना, माइक खुला होया है। किसका किसका माइक खुला है? बंद नहीं कर रहे आप, बंद कर दें, आपके माइक की बात हो रही है। बात होगी मुकम्मल, बंद कर दो फिर अब। हाँ जी बंद कर दें। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।